Good morning class. So today we are going to start with the topic conjunctions. So as you people have studied with the previous classes also, and you people know that what is the exact definition of conjunction. It is conjunction is basically used to join two or more words. Okay. So we're going to study this topic today. Okay. So whenever we have to talk about the exact definition of conjunction, so we can say that a conjunction is used to join two or more words or two or more sentences. Let's see how. Suppose if I say Ram and Shyam are good friends. Okay, Ram and Shyam are good friends. So here, as you people know that Ram, okay, and Shyam, these are your noun here, right? So a noun is a naming word. So these are basically your words. So ये आपके words हैं और इसमें बीच में we have used a conjunction that is and. So did you see that how a conjunction has joined two words? Okay. And also suppose if I say Ajay is a good batsman, Virat is a good batsman. Okay. So whenever we have to join, so basically these are two sentences, no? Ajay is a good batsman, Virat is a good batsman. So why we are like getting so repetitive? We can say that Ajay and Virat are good batsmen. So the meaning is same, right? First sentence का भी meaning same था, second का भी same था, but in the second sentence what we did, we joined it using a conjunction. So अगर हम conjunction की definition बोले, so we can say that a conjunction is used to join two or more words or two or more sentences. So this is an exact definition of conjunction which you can say. Now we will come to the types of conjunction. Types. So the first type that we have is coordinating conjunction. Coordinating conjunction. The second is your subordinating conjunction. And the third is your correlative conjunction. So firstly we are going to study about the coordinating conjunctions. So a coordinating conjunction is basically used to join two independent clauses. Means it's used to join those two sentences which are complete, okay, which take out a complete meaning. Okay, suppose if I say it was raining, so she went back home. It was raining, so she went back home. So here it was raining, she went back home. These both the sentences are complete, right? So when both the sentences are complete, so we call them as independent clauses, okay? And it is joined by a conjunction in between, that is so. So coordinating conjunctions वो होते हैं जो कि दो complete sentences को join करते हैं. तो तभी अगर हमें coordinating conjunction बताना हो कि what are coordinating conjunctions, so these are those conjunctions which are used to join two independent clauses. And coordinating conjunction के जो types होते हैं, they are for, and, nor, but, or, yet, and the last is so. So you can see these are the 7 types of coordinating conjunction. Coordinating conjunctions जो होती हैं वो हमारी 7 types की होती हैं, which are for, and, nor, but, or, yet, so. इसको याद करने का तरीका है fan boys, ठीक है? तो coordinating conjunction ये हमारी 7 types की होती हैं और आपको उसको याद करना है. तो we also call this as fan boys concept. मतलब ये concept क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको basically हम use करते हैं in order to learn this. तो F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but,
O stands for or, yet, Y stands for yet, and S stands for so. Now I would like to give you a simple brief that what these conjunctions basically are. देखो अब for जो होता है, for is for का मीनिंग होता है because, ठीक है. For means, if we talk about for, okay, we are just talking here about for. तो for का मतलब होता है because. Suppose if I ask you, why were you absent yesterday? So you will say, I was absent yesterday for I was suffering from fever. Because I was suffering from fever. तो for and because they both are one and the same thing. ठीक है. तो for का मतलब होता है because. Then comes and. And का मतलब होता है in addition to. In addition to. तो in addition to का meaning होता है कि जैसे आपने कोई काम किया, but in addition you did something else also. Like suppose if I say he came and played, he came and studied. So यहाँ पे मैं आई और मैंने आने के साथ साथ in addition to आना मैंने क्या किया, I played also, right? So and हम वहां लगाते हैं when we talk about in addition to. Then nor. Nor means not. नहीं, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं. तो we can say he neither studied nor he played. मतलब ना ही उसने खेला ना ही उसने पढ़ाई करी. तो nor का मतलब होता है not. Okay? Nor means not. But is used to show contrast between the two sentences. Okay? It shows, but shows contrast. Contrast का मतलब क्या होता है? Contrast का मतलब होता है it joins two opposite sentences. जैसे मैंने बोला he was very tired but he studied, मतलब he was very tired but he studied the whole night. ठीक है. अब वो tired था तो उसको कायदे से देखा जाए तो he should take rest. But what he did, in opposite to that, what he did, he was tired but what he did, he studied the whole night. So यहाँ पे दोनों sentences जो है they both are showing contrast. So when two sentences show contrast, we put but. ठीक है. और का यूज हम करते हैं whenever we are given any choice or a alternative. Choice or alternative. ठीक है. Choice जैसे कि if suppose if I ask you, do you like to have tea or coffee? So here I am giving choice between tea and coffee, right? So whenever we give choice, we put or. तो और का कंजंक्शन में यूज इसीलिए होता है. ठीक है. जैसे आप अभी बड़े हो गए तो people will ask you, will you take science or commerce? So this can be an example for this also, और के लिए. Then yet, तो yet भी जो होता है ना, that is also like but. It also shows contrast between two sentences. ठीक है. Contrast दिखाता है. जैसे मैं बोलूं he is poor yet he is happy. अब वो poor है तो definitely he should be sad, but he is not sad, he is happy. तो दो sentences contrast दिखा रहे हैं. So there also we put yet. तो yet का ये यूज होता है. Then last is so, and so is used for giving any kind of reason. Okay, suppose if I ask you, why did you eat the apple? Ma'am, I ate the apple. No, suppose if so के लिए जैसे so is used for giving any kind of reason. जैसे अगर मैंने बोला I was hungry so I ate the apple. Okay, I was hungry so I ate the apple. तो so बताता है whenever you have to give any kind of reason to someone, then we use so. Now this completes our coordinating conjunctions. Now we will move on to yes class, so now we are going to move on to the subordinating conjunctions. अच्छा, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थी, सो दे वर यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. मतलब वो दो सेंटेंसेस वो जॉइन करती थी जो ऑलरेडी कंप्लीट होते थे. अब ये जो होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो इट इज यूज्ड टू जॉइन लाइक अ डिपेंडेंट सेंटेंस विद एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. मतलब इसमें एक सेंटेंस कंप्लीट होता है और एक सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. एंड जो ये हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, इनको भी काफी सारी चीजों में क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम,
ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमारी कंजंक्शंस होती हैं जैसे कि बिफोर, ठीक है, आफ्टर, टिल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस। तो ये सब हमारी कंजंक्शंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन होती है हमारी बिकॉज, ठीक है, एज भी होती है, एंड यू कैन यूज सिंस ऑल्सो। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई रीजन देते हैं, व्हाई वर यू एब्सेंट, सो आई वाज एब्सेंट बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, या सिंस इट वाज गेटिंग डार्क सो आई रैन होम क्विकली। तो ये तब आपकी यूज होती है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, बिकॉज, एज, सिंस। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम यू हैव बिफोर, आफ्टर, टिल, सिंस, अनटिल, सो ऑल दीज थिंग्स। देन होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जब हमें कोई पर्पस फिल करना होता है तो पर्पस के लिए वी हैव सो दैट, वी हैव लेस्ट, ठीक है। लेस्ट को ये जो वाली कंजंक्शन है लेस्ट, ये आपने अभी न्यू आई है, न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। तो जैसे अगर मैंने बोला कि होल्ड माई हैंड टाइटली लेस्ट यू विल स्लिप, मतलब मेरा हाथ अच्छे से पकड़ो वरना तुम गिर जाओगे, तो लेस्ट का मतलब होता है वरना। सो दिस कंजंक्शन ऑल्सो वी यूज इन द सेंटेंसेस। फिर आती है हमारी सो दैट। तो सो दैट का यूज हम ऐसे कर सकते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है। तो हम खाना क्यों खाते हैं, जिससे कि हम जिंदा रह सके। सो द पर्पस ऑफ ईटिंग फूड इज टू सर्वाइव। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस आता है। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हमारी होती है जो ये होती है, वो होती है अनलेस, ठीक है, एक होती है इफ, अनलेस एंड इफ, ठीक है। अनलेस यू डू योर होमवर्क आई विल नॉट लेट यू गो आउट टू प्ले, मतलब जब तक तुम अपना काम नहीं कर लेते मैं तुम्हें बाहर खेलने नहीं भेजूंगी। तो अनलेस इज जब आप कोई शर्त रख देते हो, या इफ में भी जैसे हम कोई शर्त रख देते हैं, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे ये शर्त है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ही ऐसा होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन वी हैव टू, दैट इज अनलेस एंड इफ, ओके। और भी होती है हमारी जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है। तो प्लेस के बेसिस पे तो इट्स वेरी क्लियर दैट यू कैन, जैसे होती है हमारी वेयर एवर, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। अच्छा, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन कौन सी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देखो मैंने जब आपको बताया था व्हेन वी वर डूइंग द कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपेयर ही तो करते हैं। तो जैसे मैंने अगर ये बोल दिया रीटा इज नॉट एज गुड एज नीता, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर वी आर कंपेयरिंग रीटा एंड नीता, तो वी हैव पुट एज, ठीक है। तो एक तो हम एज का यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन। दूसरा जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो देन हमेशा आता है, देन। तो जैसे मैंने बोला कि राम डज नॉट रन फास्टर देन श्याम, तो यहाँ पे भी राम श्याम का कंपैरिजन हो रहा था तो मैंने देन लगाया। तो जहाँ पर भी देन आ जाता है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन वी यूज एज एंड देन, ठीक है। तो एंड भी बहुत सारी हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, जैसे कि हमारी दो होती है ना, ऑल्दो होती है। आप देखोगे कभी कभी कुछ सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं इस तरीके से। तो अब आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो पता ही है क्या होती है, वही 7 होती हैं जो फैन बॉयज वाली। तो अब जब वो कोऑर्डिनेटिंग होती है तो आपको सब समझ में आ जाएगा ना सेंटेंस की। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरीके के आते हैं, यू आर आस्क्ड दैट विच वन इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, विच वन इज द सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग तो जब लर्न ही है, तो बाकी जो हुई वो कौन सी हुई, वो सबऑर्डिनेटिंग हुई। ये तो सिंपल सी बात है, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। सो इन एग्जाम्स यू कैन फाइंड क्वेश्चंस वेयर यू विल बी आस्क्ड that you have to differentiate that which one is subordinating and which one is coordinating. तो coordinating तो पता ही है 7 होती है, आपने लर्न कर ली बहुत अच्छे से फैन बॉयज कॉन्सेप्ट। तो जो उसकी बची बात की, so they all are your subordinating conjunctions, ठीक है। अब हमारी लास्ट एक बचा है हमारा टॉपिक एंड दैट इज so the last topic that is left is the correlative conjunction. Correlative conjunction.
अच्छा, अब जो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होती हैं, ये कुछ ऐसी कंजंक्शन होती हैं, ये ना कोऑर्डिनेटिंग जैसी होती है ना सबऑर्डिनेटिंग जैसी होती है. दीज आर दोज कंजंक्शंस विच आर बेसिकली यूज्ड इन पेयर्स. इनको हम हमेशा पेयर में ही आप पाओगे, जैसे कि ईदर और, ठीक है, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. मैं लिखवा दे रही हूँ आपको सारी यहाँ पे, यू विल लर्न. नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है. एक होती है हमारी हार्डली वेन, ठीक है. देन नो सूनर देन, नो सूनर देन, ठीक है. बोथ एंड, तो ये होती है कुछ हमारी. हाँ, एक होती है हमारी वेदर और, वेदर और. लेट मी जस्ट चेक, I completed all of them. Both and either. Yes, I have completed. तो आपकी कुछ conjunctions होती हैं which are done, which are used in pairs. तो जैसे neither, neither nor, either or, not only but also, hardly when, no sooner than, both and, whether or. For example, मैं बोलूँ his grandfather could neither write nor study. मतलब ना तो वो he could neither write nor study. तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने ना ही उनके ग्रैंडफादर पढ़ सकते हैं ना ही वो स्टडी कर सकते हैं. तो क्या मतलब हुआ कि नीदर नॉर, मैंने इसको पेयर में यूज किया. या जैसे मैंने बोला ईदर शी इज प्रेजेंट इन द क्लास और हर सिस्टर इज प्रेजेंट, तो ईदर का और के साथ यूज हुआ. या जैसे मैंने बोला हार्डली व्हेन आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड लेफ्ट. या फिर both Karan and Cyrus are good friends. both Karan and Cyrus went for the movie. तो both and का साथ में यूज हुआ. फिर जैसे not only but also है, तो जैसे मैंने बोला not only the Indian food tastes good but also it is beautiful to look at. तो इस तरीके की कंजंक्शंस हो गई. तो कुछ कंजंक्शन आप देखोगे वो हमेशा पेयर्स में यूज होती हैं. सो दे आर ऑल योर कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड मेनली यही होती हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली वेन, नो सूनर देन, बोथ एंड, वेदर और. तो इसको याद कर लो. बेसिकली इतनी ही आपको मिलेंगी जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक.